morning class. Today we are going to start with the earth magnetism. Last class तक हमने magnetic we have find the amount of the force of the magnetic field on the axial and equatorial line and magnetic field lines की properties हमने study किया था. आज हम earth का magnetism study करेंगे. As we all know that earth is a sphere. It has a geographical axis, and when we treat earth as the it plays a bar magnet at the center of the earth, then it also have one magnetic axis, and the two axes, geographical axis and magnetic axis, do not align at the same point. They must be different by an angle of theta, which is about 20 degrees. So whenever a bar magnet is suspended freely, its north pole facing toward the geographical north and south pole facing toward the geographical south pole of the earth. William Gilbert is a scientist that suggests that the earth itself behaves as a huge magnet. It was assumed that the huge magnet is lying deep inside the earth with its south pole toward the geographical north and the north pole toward the south of the earth. ऐसा माना गया कि एक ह्यूज मैग्नेट है जो कि इनसाइड द अर्थ है, विच फेस टुवर्ड द साउथ. उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या है? अर्थ के साउथ पोल की तरफ फेस कर है, एंड जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ को फेस कर रहा है. It has become quite easily to explain why the north pole of the freely suspended bar magnet always point toward the geographical north. अब हमने क्या assume किया that earth itself is a magnet and having north and south pole facing toward the if this is north pole, it is facing toward the geographical south, and if it is south pole, it is facing toward the geographical north. Now if I take another magnet and place it, हम उसको लेके आते हैं freely suspend कर देते हैं, तो obviously क्योंकि अर्थ के सेंटर पे आपने एक मैग्नेट पहले से assume कर रखा है with north and south pole, and according to that आप जब एक बार मैग्नेट लेके आएंगे and place it freely, so it will also face toward in such a way that the north pole of the bar magnet is toward the north pole of the geographical axis and south pole of the bar magnet is facing toward the geographical south axis. It may be pointed out that the line joining the geographical north and south of the axis called geographical axis, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है geographical axis, dotted line से आपको बना रखी है. It makes an angle of 20 degrees with the magnetic axis of the line n prime s prime. Represent the magnetic line around the earth. The axis of rotation of the earth is called geographical axis. Geographical axis के about earth क्या करता है? Rotate करता है. Where it passes to the surface of the earth is called geographical pole. जिस point से ये pass होता है, that particular point is called geographical pole. A vertical geographical pole. The point N and S represent the geographical north and south pole, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया नहीं गया है. This particular line is saying the south and this gives a north pole. तो ये आपके क्या हो जाएंगे? These are called the geographical poles. Now about the cause of the earth magnetism. It may be pointed out that the source of the earth magnetism is not a large solid mass of the magnetic material located inside the earth. It is guessed that the earth magnetism is due to the molten charged metallic fluid. It gives rise a large value of the current flowing inside the core of the earth. Another reasons are there. The rotation of earth about its own axis. अगर अर्थ अपने एक्सेस पे दोबारा अपने आप क्या करती है? रोटेट करती है. एंड वी ट्रीट दैट दिस इज अ कि आपका जो कोर है वो मोल्टेन स्टेज में है, देन देयर मस्ट बी अ कंडीशन ऑफ आयंस, एंड व्हेन दे आर स्टार्टिंग रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ,
then it will create a strong electric current to flow. Another point is there, as the core of the earth is made up of iron and nickel, we generally assume that the core of the earth is made up of iron and nickel, and due to the rotation of the earth, अगर आयरन एंड निकल का पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, दे बिहेव जस्ट लाइक ए डायनेमो। जैसे आप देखते हैं डायनेमो, जो आप जनरेटर या मोटर वाले केस देखते हैं, उनके अंदर आप देखते हैं जनरेटर में क्या होता है कि आपका जो रेक्टेंगुलर आपने वायर का फ्रेम लगाया होता है, वो बार बार मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। व्हेन स्टार्ट रोटेटिंग, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बार बार कंटिन्यूसली क्या होती है, चेंज होती है, एंड ड्यू टू दैट द अमाउंट ऑफ करंट इज गोइंग टू बी जनरेट एंड मेकिंग अ रिवर्स डायरेक्शन आल्सो। सो अगर ऐसा ही अर्थ भी करती है, एंड इफ इट इज कंटेनिंग एट द सेंटर आयरन एंड निकल, then its magnetic field is going to be changed multiple times, and it behave as a dynamo and generate current also and become magnetized. If there is current, there is a magnetic field. Now moving to the next slide, this is about the magnetic element. What the magnetic element associate अर्थ के मैग्नेटिज्म से, कुछ पर्टिकुलर मैग्नेटिक टर्म्स जो है वो एसोसिएटेड है, जिनके बारे में इस टॉपिक में आपको बताया गया। दीज आर जनरली द डेफिनेशंस व्हिच इज बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम, और सम टाइम आपको इस पे बेस कुछ रिलेशंस डेवलप करने को मिल सकता है, जस्ट लाइक ससेप्टिबिलिटी। तो वी आर गोइंग थ्रू दिस मैग्नेटिक एलिमेंट, द फिजिकल क्वांटिटीज which determine the intensity of the earth's total magnetic field completely, both in term of magnitude and direction, are called the magnetic element. Means magnetic element क्या है, अर्थ की magnetic field के terms को या quantities को identify करना, which involve intensity, and it must have both the magnitude and the direction term also. First of all, we discuss about the magnetic declination. Declination at a place is the angle between the geographical meridian and magnetic meridian. Declination क्या है? It's a angle between the geographical meridian and magnetic meridian. Meridian is nothing but the axis. जो आपकी एक्सेस हमने लास्ट पेज पे देखी थी, geographical axis and magnetic axis. The angle between these two is called magnetic declination or magnetic meridian. Sorry, magnetic declination. बिकॉज वहां पे आपने ज्योग्राफिकल एक्सेस और मैग्नेटिक एक्सेस के बीच का एंगल डेवलप किया था। नेक्स्ट डेफिनेशन इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। It must be clear that it is the angle made between the direction of total magnetic field with the horizontal direction. हमें क्या करना है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी एंड उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, एंड द एंगल बिटवीन दिस टू इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा। यू कैन सी इन द फिगर, अगर आप सपोज करते हैं दैट ये एडी जो है ये आपकी एक्सेस है, इफ दिस इज एन एक्सेस, और आप ये अर्थ की एक एक्सेस है जिसपे हमने ये फ्रेम बनाया है। चीजों को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम इसको एक लाइक 2 डायमेंशनल फ्रेम की फॉर्म में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट कर गए, जिसमें आपकी एक ज्योग्राफिकल आप कह सकते हैं एक मैग्नेटिक मेरिडियन आपको दिखाई गई है, एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन आपको दिखाई गई है। तो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक मेरिडियन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में आपके दो कंपोनेंट है, ए बी एंड ए एन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज रिप्रेजेंट बाय एपी। ठीक है, ये दोनों का क्या है, मैग्नेटिक कंपोनेंट जो आएंगे आपके उनका रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। और जब हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन की बात करेंगे, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो आपको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दो एंगल आपको यहाँ पे जरूरी पता होने चाहिए, दैट इज गिवन देयर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड along the horizontal direction. It's a simple. Now using these three definition, we have to derive a formula for that. From the point P, draw PL. This P point is there. यहाँ से हमने PL डेवलप किया which is perpendicular to AB, and PM डेवलप किया which is perpendicular to AD. ठीक है, then AL is nothing but horizontal component of magnetic field and AM is nothing but the vertical component of the magnetic field.
अब हम एक ट्राइंगल लेते हैं ALP एंड उसके लिए क्या करते हैं, cos थीटा निकालते हैं, cos थीटा नहीं एक्चुअली cos डेल्टा निकालते हैं, cos ऑफ एंगल ऑफ डिप, इट इज नथिंग बट कम्स टू बी AL डिवाइड बाय AP बेस बाय हाइपोटेन्यूज and it becomes equal to BH by capital B. AP is what? Capital B. तो BH in term of B cos delta आ जाएगा, मतलब आपने क्या किया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल दिया विच इज B cos delta. Similarly you can find out the vertical component which is B sin delta. Now moving to the next page. So you have to find the resultant and resultant आपको find करना बहुत easy हो जाएगा, BH square plus BB square का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे and it comes to be B square cos square delta plus B square sin square delta and finally B is equal to square root of B square plus B square. यहाँ पे अगर हम देखें क्योंकि cos square delta plus L square delta becomes 1 so it must be equal to B square, therefore this term and B are equal. Also now what we have to do, we have to find the angle, आपको क्या करना, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है and for that BV and BH का हम क्या करेंगे, रेशियो निकालें. BV by BH is B sin theta delta upon में B cos delta, it becomes tan delta. तो BV by BH becomes tan delta. तो अगर मुझे डायरेक्शन का आइडेंटिफाई करना है तो मुझे BH और BV की वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा and we have to find a ratio of BV by BH. Means vertical component of the earth magnetic field and horizontal component of the earth magnetic field का ratio जो होगा that is equal to tan delta which is called angle of dip. And if we have to find delta तो हम tan का inverse ले लेंगे, tan inverse of vertical component of the magnetic field to the horizontal component of the magnetic field. Some another terms that is associated with the earth magnetic field is given there. कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको और स्टडी करना है. फर्स्ट ऑफ दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी. मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, इट इज रिप्रेजेंट विद कैपिटल H. मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम कैपिटल H से इंडिकेट करते हैं एंड इट इज नथिंग बट B नॉट बाय म्यू नॉट. B नॉट इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड फॉर वैक्यूम केस and mu naught is the absolute permeability of vacuum. Magnetic intensity is also called H field. H for magnetic intensity के लिए H की नोटेशन लगाई थी and therefore it is called H field also or magnetic field strength. यूनिट अगर निकाली जाए H की तो इट इज B नॉट डिवाइड बाय म्यू नॉट. B नॉट की यूनिट आपको पता होगी, म्यू नॉट की आपको यूनिट पता होगी. Then just using that we have find that unit of H is ampere per meter. One unit is that ampere per meter. इसको हम अगर चेंज करना चाहें तो हमारे पास यूनिट में और चेंजेस भी होते हैं एंड पॉसिबली आपके पास जो वैल्यूज आएंगी दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर टेस्ला और न्यूटन पर वेबर. एक्सेप्ट दिस जूल पर मीटर क्यूब पर टेस्ला और जूल पर मीटर पर वेबर. ये आपके पास पॉसिबल क्या है, यूनिट्स है जो हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी की यहाँ पे यूज कर सकते हैं. एक्सेप्ट दिस वी आल्सो नो, अगर हम सीजीएस सिस्टम में वर्क कर रहे हैं तो ऑगस्टेड इज आल्सो अ यूनिट. तो 1 ऑगस्टेड इज इक्वल टू 1 गॉस डिवाइड बाय म्यू नॉट भी आप यूज कर सकते हैं व्हिच इज अबाउट टू बी 80 एम्पियर पर मीटर. ये एक रिलेशन है जो आपकी यूज की जाएगी, एग्जाम में आती है और स्टडी की टर्म में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू चेंज इनटू गॉस. ठीक है, टेस्ला को गॉस में कन्वर्ट करना है एंड यू नो दैट गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला. तो टेस्ला को गॉस में कन्वर्ट करना है, म्यू नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड उसके बाद आप निकालेंगे तो ये रिलेशन आते हैं दैट इज 10 एम्पियर पर मीटर ऑगस्टेड की टर्म में. ठीक है, हमने गॉस टेस्ला का टर्मिनेशन यहाँ पे यूज किया. गॉस एंड टेस्ला में क्या रिलेशन होता है, वी आर नॉट यूजिंग सीजीएस हियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन. Intensity of magnetization, it is defined as the magnetic component, magnetic moment. Just remember, intensity of magnetization is related to magnetic moment and magnetic intensity is related to magnetic field strength. वो magnetic field strength से relate कर गई थी and it is related to magnetic moment.
Intensity of magnetization is defined as a magnetic moment developed per unit volume when a magnetic specimen is subjected to magnetic field. जब किसी magnetic substance को किसी magnetic field में, एक आपने कोई भी एक बार मैग्नेट लिया, उसको एक magnetic field में आप प्लेस कर गए हैं, देन वहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है, इट इज गिवन एज डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम. क्या किया है आपने? यू हैव टेकन अ बार मैग्नेट एंड प्लेस इट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अदर टू पोल्स. आपने दो पोल लिए और उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपना बार मैग्नेट प्लेस कर दिया. सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द बार मैग्नेट, जो भी आपने वहां पे यूज किया होगा. यूनिट अगर निकाली जाए आई की, द यूनिट इज सेम, एम्पियर पर मीटर. इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द एच. जैसे आपने एच निकाला था, दिस इज नथिंग बट मैग्नेटिक इंटेंसिटी. यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट भी सेम है, बट दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस है. इट इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और वो था आपका मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय एब्सोल्यूट परमेबिलिटी. Intensity of magnetization is unit wise देखा जाए then it is equal to that of magnetic intensity. ठीक है, intensity of magnetization is also named as magnetization. Magnetization जो term आपको दी गई है, that is also represented by the intensity of magnetization. In NCERT, this magnetization or intensity of magnetization is represented with capital M. इसको कैपिटल M से NCERT में दिखाया गया है, but we have used capital M here for the magnetic dipole moment. So we are not going to use M again. इसलिए हमने यहाँ पे I का रिप्रेजेंटेशन दिखाया. I is not representing the current here. Also as V is equal to 2 into AL. Volume क्या होता है? Area into the length of the cuboid, जो आपका बार मैग्नेट है. If you are treating a bar magnet, then the volume is nothing but the area of the cross section multiply the length of the bar magnet. तो वो यहाँ पे आपको दिखा रखा है, वॉल्यूम आपने निकाला है. And dipole moment is nothing but the magnetic pole strength into the length of the bar magnet. That therefore we have taken small m into 2l. Substitute करेंगे इस वैल्यू को and we see that I is nothing but pole strength divided by the area. So intensity of magnetization is not only equal to the dipole moment per unit volume, but also said to be magnetic pole strength per unit area. So I is equal to, if we take A as a unit, अगर हमने area of cross section जो है उसको 1 मीटर स्क्वायर एज्यूम कर लिया, then I must be equal to M. That means intensity of magnetization is equal to the pole strength of a bar magnet of unit cross sectional area. Moving to the next definition, third definition is there, magnetic flux. And flux you know well, the number of field line passing through a unit cross sectional area. तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है definition, formula term में दिखा रखा है, the number of magnetic field line divided by the area of surface. Flux is nothing but equal to B dot ds. B dot ds means magnetic field over passing through that surface area, so surface area. Delta S is the surface area and B is the magnetic field of the induction. यहाँ पे ध्यान रखिएगा, B क्या है? जो small b है, that is magnetic field of induction. SI unit of flux is Weber, you know well. चलते हैं next definition पे, which is magnetic induction, and it is defined as the number of the magnetic field line, or it is defined as the number of the magnetic line of induction, magnetic field line inside the material crossing per unit area and normal through the magnetic substance. Magnetic induction जिसको हमने कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया था, it represent the number of magnetic field line of induction or simply magnetic field line inside the bar material. जो आपका सॉलिड आपने मटेरियल यूज किया है उसमें से कितनी आपकी नंबर ऑफ फील्ड लाइन आपकी क्या हो जाएंगी? क्रॉस हो जाएंगी. That per unit area, मतलब यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन अगर लिया जाए बार मैग्नेट का, तो उसमें से कितनी मैग्नेटिक नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी? क्रॉस हो जाएंगी. That represent the magnetic induction. अब हमें पता है कि if we are taking a bar magnet of magnetic induction B and B naught is the magnetic induction for the vacuum case. वैक्यूम से अगर B naught पास होती है
एंड म्यू नॉट आई की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड इसको ऐड कर देते हैं, देन वी गेट दैट द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन passing through the unit cross sectional area of the bar magnet. Therefore B naught is nothing but mu naught times of H plus mu naught I. तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, B नॉट को हमने म्यू नॉट आज की टर्म में लिख दिया एंड म्यू नॉट आई तो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू थी, म्यू नॉट को हमने कॉमन निकाला एंड इट बिकम्स I प्लस H प्लस I. तो मैग्नेटिक इंडक्शन इज नथिंग बट इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड. इसको कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड भी कहेंगे या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह देंगे या मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहेंगे. मैग्नेटिक फील्ड आपने चैप्टर की स्टार्टिंग से देखा है कि आपने बी को मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किया था, तो बी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं एंड फ्लक्स डेंसिटी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब यूनिट ऑफ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें या मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो यू नो दैट इट इज टेस्ला. इन टर्म ऑफ वेबर इट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर. अगर हम न्यूटन और न्यूटन के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो बिकम न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, और अगर हम इसे जूल के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं देन इट इज जूल पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज ससेप्टिबिलिटी. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इट्स अ इम्पोर्टेंट टर्म. ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बिकॉज ये मैक्सिमम टाइम इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे बेस्ड. तो magnetic susceptibility is nothing but the ratio of the intensity of the magnetization to the magnetic intensity. We remember that intensity of magnetization is starting with the letter capital I. तो आपने क्या किया, न्यूमरेटर पार्ट में आपने कैपिटल I रिप्रेजेंट कर दिया. And next part is magnetic intensity. Magnetic intensity is represented with H field. तो यहाँ पे आपने chi m को रिप्रेजेंट किया I डिवाइड बाय H, और सिंपली टर्म में आप लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाय द H फील्ड. तो आपको चीजें बहुत इजीली याद रह जाएंगी. chi m इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ओवर H फील्ड, तो I बाय H आपको इजीली याद हो जाएगा. एंड chi m इज अ यूनिटलेस टर्म बिकॉज I जो आया था दैट इज आल्सो having the same unit एम्पियर पर मीटर था एंड H की भी थी एम्पियर पर मीटर, तो यूनिट्स आपकी सेम थी, कैंसल आउट हो जाएंगी एंड chi इज यूनिटलेस क्वांटिटी. इट्स जस्ट अ न्यूमेरिक टर्म. ये एक मैग्नीट्यूड होगा, न्यूमेरिक टर्म होगा, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको मिलेगा एज पर रिक्वायरमेंट जो भी आपका होगा उसके अकॉर्डिंग निकाला जाएगा, बट इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी. नेक्स्ट इज देयर मैग्नेटिक परमेबिलिटी. एब्सोल्यूट परमेबिलिटी आपने देखी थी, म्यू नॉट को निकाला गया था, बी नॉट बाय एच नॉट कह सकते हैं आप उसको. अगर मैं किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए निकालना स्टार्ट कर दूं देन इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम. द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन इज कैपिटल B एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज H फील्ड. सो म्यू इज इक्वल टू B डिवाइड बाय H मींस मैग्नेटिक इंडक्शन विद रिस्पेक्ट टू H फील्ड. So mu is a magnet of a magnetic substance gives the measure of the its conducting power toward the passage of the magnetic line of the induction. SI unit is nothing but Tesla meter per ampere. आप यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे, B की यूनिट डालेंगे, H की यूनिट डालेंगे and you comes to be that Tesla ampere per meter. Note here that B is equal to mu naught times of H plus I आपने टर्म डेवलप की थी. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी टर्म में से म्यू नॉट क्या करेंगे, H से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय H टू बोथ साइड. इट बिकम्स B बाय H, म्यू नॉट ऐसे ही रहेगा एंड इट बिकम्स H नॉट H बाय H दैट कम्स टू बी 1 एंड प्लस I बाय H. ये टर्म आएगी आपके पास. B बाय H को आपने म्यू रिप्रेजेंट कर दिया तो आपने यहाँ पे म्यू लिख दिया, म्यू नॉट इज देयर एंड I बाय H इज नथिंग बट इक्वल टू chi m. ठीक है. तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस chi m, और chi m की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इट इज 1 प्लस chi m इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट आ जाएगा. म्यू बाय म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल टू द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम आपकी होती है. तो इसको आप म्यू आर से रिप्रेजेंट कर देंगे, रिलेटिव परमेबिलिटी हो जाएगा ये. तो आपका एक टर्म आता है chi m इज 1 प्लस chi m इज इक्वल टू द रिलेटिव परमेबिलिटी. ये आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं और ऑब्वियसली ये हर दूसरे तीसरे साल में आपका आता है म्यू chi m की हेल्प से आपको म्यू आर निकालने के लिए. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल की.
मैग्नेटिक मटेरियल्स को अब हम अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड्स को पढ़ा था, अब हम मैग्नेटिक मटेरियल को पढ़ेंगे। एज वी यू नो दैट मैग्नेटिक मटेरियल इज नथिंग बट ए लॉर्डस्टोन। तो आपको पता होगा मैग्नेटिक मटेरियल की हिस्ट्री आपको दी गई थी क्लास 6-7 के अंदर, जिसमें बताया गया था कि लॉर्डस्टोन होता है स्पेशल काइंड ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का आपकी क्या है, ये स्टोन है जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, एंड इट मैग्नेटाइज द मटेरियल जस्ट लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल। अब उसी को हम एक्चुअली डील कर रहे हैं। तो हर एक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म होता है, नॉट ओनली आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, बट देयर आर सम मेनी there are not some but many materials are there which also have magnetic field, but the amount of the magnetic field or that impact of the magnetic force is very low on that. If we place a bar magnet nearby the jam, then they will feebly magnetize, बहुत rarely magnetize होते हैं, तो उसका impact आपको देखने को नहीं मिल पाता है। Whereas some are there just like iron, nickel and cobalt जो कि highly magnetized होते हैं, they shows a sudden impact of the placing a bar magnet nearby to them. So on the basis of that, we can divide the magnet, all the material into three categories. These are divided by these are categorized by the Faraday, and he divide all the elements into a three special categories. This is called diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic material. Means जितने भी आपके मटेरियल है इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया when they are interacting with the bar magnet. तो हमने बोला इनको diamagnetic, weaker section, पैरामैग्नेटिक, एवरेज एंड फेरो हाईली मैग्नेटाइज्ड मटेरियल जो होते हैं। तो यहाँ पे तीन कैटेगरी बनी, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। Discussing about the diamagnetic condition, the substance which when placed in the magnetic field are feebly magnetized. ये ऐसे मटेरियल हैं जिनको अगर मैं किसी पोल के पास लेके जाता हूँ, सपोज वी हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, हमने एक मैग्नेटिक प्लेस यहाँ, मैग्नेटिक पोल यहाँ पे रख दी है, नॉर्थ एंड साउथ, उनके बीच में खाली स्पेस था। नाउ वी टेक दिस एलिमेंट एंड प्लेस ओवर देयर, तो वो क्या करेगा, इट इज फीबली मैग्नेटाइज, बहुत बहुत ही कम अमाउंट में क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वी रिमेंबर दैट इट विल डायरेक्ट इटसेल्फ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट। जो मैग्नेट आपने रखी थी, सपोज आपने नॉर्थ एंड साउथ पोल रखा था, एंड व्हेन यू प्लेस दिस मैग्नेट इट विल itself orient in such a way that opposite to the direction of the magnetic field। मतलब जो आप मटेरियल रखेंगे उसका जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा वो आपके मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल के अलाइन हो जाएगा, एंड इट इज feebly magnetized। one more thing is there, the behavior of the diamagnetic substance is independent of temperature। अब ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको दी गई है, the diamagnetic substance is independent of the behavior of the temperature। Sorry, the behavior of the diamagnetic substance is independent of the temperature। मीन्स टेम्परेचर को अगर वेरी किया जाए, हाई किया जाए या लो किया जाए, इससे इसके बिहेवियर में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जस्ट लाइक कॉपर, जिंक, बिस्मिथ, सिल्वर, गोल्ड, लेड, ग्लास, मार्बल, वाटर, हीलियम, आर्गन एंड सोडियम क्लोराइड। तो इसमें आपके कुछ मेटल्स भी हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी हैं, इवन देयर इज कंपाउंड एलॉय इज आल्सो देयर। ये सब इस कैटेगरी के में आते हैं, एंड दीज आर ऑल द डायमैग्नेटिक मटेरियल। Now next point is there paramagnetic material, the substance which when placed in a magnetic field are feebly magnetized in the direction of the magnetic field। Be remember यहाँ पे भी feeble magnetization होता है, but it is in the direction of magnetic field। मतलब जो north and south pole आपका बार मैग्नेट का होगा उसके अकॉर्डिंग डाइपोल जो आपका मटेरियल है वो अपने आप को अलाइन करेगा इन सच ए वे इट इज टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के अलाइन करेगा। It is called paramagnetic substance। The behavior of the paramagnetic substance is temperature dependent। Next point is there, the behavior of paramagnetic is temperature dependent। मतलब टेम्परेचर को अगर वेरी किया जाए तो उसके मैग्नेटिक बिहेवियर में चेंज आएगा। टेम्परेचर के साथ साथ या तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ेगा या घटेगा। That is the next part we will discuss। Some materials of the paramagnetic materials की कैटेगरी में जो इनको रखा जाता है, that is aluminium, sodium, antimony, platinum। कॉपर के चांसेस भी है जो टेम्परेचर के साथ हल्का फुल्का वेरी कर सकता है। क्लोराइड इज देयर, मैग्नीज इज देयर, क्रोमियम इज देयर, लिक्विड ऑक्सीजन इज देयर। ये स्पेशल कंडीशन के अंदर पैरामैग्नेटिक से बिहेव करते हैं, अदरवाइज दे आर बिहेविंग एज ए डायमैग्नेट। काफी हद तक ये डायमैग्नेट बिहेव करते हैं, बट कुछ स्पेशल कंडीशन में ये डाय से पैरा में भी चले जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज देयर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल।
magnetize in the direction of the magnetizing field. The substance which when placed in a strongly magnetized, the substance which when placed in a strongly magnetized in the direction of the magnetizing field are called ferromagnetic material. अब की बार हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट मटेरियल को प्लेस कर रहे हैं, लेकिन अब की बार आपकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब आपने जो पोल लगाए हैं वो स्ट्रॉन्ग है, उनका जो पोल स्ट्रेंथ है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। और पोल स्ट्रेंथ अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी जो सिस्टम ने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की है, मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज टू मच स्ट्रॉन्ग। अब अगर कोई मटेरियल अगर वहां पे रखा जाता है तो वो आपकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप ही क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। एंड दीज आर कॉल्ड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। The ferromagnetic behavior of the substance become temperature dependent. It is also temperature dependent. About a certain temperature which is characterized for of that particular substance is called QE temperature. अब ये जो टेम्परेचर है, हमने कहा ये सारे मटेरियल जो होते हैं, फेरो मटेरियल जो होते हैं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, बट दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल। ये सबके लिए फिक्स नहीं है, अलग अलग मटेरियल के लिए टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। एंड दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूई टेम्परेचर। क्यूई टेम्परेचर इज मटेरियल डिपेंडेंट, कह सकते हैं आप इसको कि मटेरियल के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। जस्ट लाइक आयरन इज देयर, निकेल इज देयर, कोबाल्ट इज देयर, एल्निको इज एन एलॉय। आयरन कोबाल्ट का आप सबको पता है, एल्निको एक एलॉय है, ये भी क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर काउंट किया जाता है। एंड ऑल दिस हैव अ डिफरेंट क्यूई टेम्परेचर, सबका क्यूई टेम्परेचर अलग अलग होता है। क्यूई टेम्परेचर से पहले इनका बिहेवियर फेरोमैग्नेटिक होता है, क्यूई टेम्परेचर के बाद इनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा उसके लिए हम एक थ्योरी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्यूईज लॉ इन मैग्नेटिज्म, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड, क्यूईज लॉ इन मैग्नेटिज्म स्पेशली फॉर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल के ही लिए ही अप्लाई करना है, क्यूई टेम्परेचर का जो लॉ है ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे अप्लाई किया जाता है, एंड इसके बेसिस पे हम पैरामैग्नेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। वी हैव डेवलप हेयर, लाइक जब आप एक सब्सटेंस की बात करते हैं, एक मटेरियल की बात करते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है, एंड इस मटेरियल बॉक्स के अंदर हमने कुछ शॉर्ट से एरोस रिप्रेजेंट किए। दैट एरो इज नथिंग बट ए मैग्नेटिक डाइपोल। जब हम किसी सब्सटेंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर वेरियस एरियाज होते हैं जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं, या स्पेशली एटम्स को हम बात करें तो एटम्स क्या होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं। अब हम एटम की अगर बात करते हैं तो देयर मस्ट बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट, सो बिहेविंग दैट हमने इसको यहाँ पे एक डाइपोल्स कंसीडर कर लिया कि एक आपका पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज के कारण एक डाइपोल जनरेट हो जाएगा, दिस विच बिहेव जस्ट लाइक एग्जिट पॉइंट एंड एंट्री पॉइंट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। तो डाइपोल जो होते हैं व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, तो आपका उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उनसे एक डाइपोल क्रिएट होगा, एंड दैट डाइपोल क्रिएटेड इन सच अ वे that it is randomly oriented. They cancel out the effect of each other. यहाँ पे आप देख सकते हैं magnetic dipoles are randomly oriented in such a way that the total जो magnetic field बनेगी that is zero. External magnetic field भी आपने कुछ नहीं दिया था और internally इसकी magnetic field भी क्या हो गई है, zero हो गई है। But in presence of the external magnetic field, अगर बाहर से external magnetic field को बढ़ाया जाए, initially it was zero, नाउ वी आर गोइंग टू मैग्नेटाइज इट, हम धीमे धीमे क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ये जितने भी आपके डाइपोल थे जो कि विद इन दैट वॉल्यूम थे सब्सटेंस के लिए, ये डाइपोल क्या करेंगे, अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट कर देंगे। दे अलाइन देमसेल्फ इन सच ए वे दैट इट इज along the direction of the external magnetic field. आफ्टर सम टाइम ऐसा होगा कि जितने भी डाइपोल आपके दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर थे, दे अलाइन देमसेल्फ इन सच ए वे दैट दे आर इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो द मैग्नेटिक डाइपोल अलाइन देमसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द बी एक्सटर्नल एट ए गिवन टेम्परेचर। हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तो किया है, साथ ही साथ हम उसका टेम्परेचर भी क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये अपने आपको क्या करते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करते हैं with respect to B external at a given temperature which is less than QE temperature. अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर को जरूरत से ज्यादा इंक्रीज कर दिया, दैट मींस इफ वी आर एक्सीडिंग QE टेम्परेचर, इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा।
और उससे नीचे है तो इसका बिहेवियर सेपरेट है, इसका बिहेवियर अलग है। अगर वो क्यू की टेम्परेचर से नीचे है, क्यू की टेम्परेचर के ऊपर जाएगा तो इसका बिहेवियर अलग हो जाएगा। thus the intensity of magnetization is directly proportional to the magnetic intensity। रिमेंबर क्यूरीज लॉज आपको अगर बताना है तो आपको दोनों कंडीशन बतानी पड़ेगी, दैट इज विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। And you have to mention this relation that intensity of the magnetization, that means I, is directly proportional to the magnetic intensity। means अगर मैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा, मतलब एच फील्ड को बढ़ाऊंगा, स्ट्रॉन्ग करूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। ठीक है, आपका डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। इससे पहले डाइपोल मोमेंट क्या होगा था, जीरो हो जाएगा था, बिकॉज डाइपोल्स आर ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, और नेट इफेक्ट क्या होगा था, जीरो हो जाएगा था। जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ेगी तो आपके जो डाइपोल है दे अलाइन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो नेट डाइपोल मोमेंट आपका जनरेट हो जाएगा। तो I is proportional to H, and next point is there, it is inversely proportional to the absolute temperature of the material। I is inversely proportional to the absolute temperature। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका डाइपोल मोमेंट इफेक्ट पड़ता है। इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर देन डाइपोल मोमेंट विल आल्सो चेंज, एंड अगर डाइपोल मोमेंट चेंज होगी तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी चेंज होगा। सो I is proportional to H divided by T। The two terms are getting coupled together, and I is proportional to H by T। Similarly, I is equal to C into H by T, where C is the called Curie constant। I by H is nothing but C by T, और यहाँ पे I by H क्या था आपका, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी थी, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नथिंग बट C by T। C इज क्यूरी कांस्टेंट है, ये क्यूरी कांस्टेंट है, एंड T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। thus chi m which is called magnetic susceptibility पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की इज इनवर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर। इनवर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर मतलब सर्टेन टेम्परेचर तक ये पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा। ठीक है, एंड लाइक एक क्यूरी टेम्परेचर है, उससे पहले तो इसका बिहेवियर कैसा है, फेगो है, अब उसके बाद जाएगा तो क्या बन जाएगा, पैरा बन जाएगा। तो वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट। क्यूरी टेम्परेचर को डिफाइन किया गया है यहाँ पे, या क्यूरी पॉइंट्स को डिफाइन किया गया है फॉर ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक के लिए डिफाइन कर रहे हैं हम कि फेरोमैग्नेट के बारे में हम क्यूरी कैसे बताएंगे। पैरामैग्नेट के बारे में तो हमने क्यूरी देख लिया कि वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए होता है, एंड इट इज chi m is equal to C by T। For a ferromagnetic material, if we have to define, is a temperature above which it loses its ability to possess magnetism in absence of an external field। एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके अबव जाने पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देगा, टू हैव magnetism in absence of external magnetic field। So if we are taking temperature less than QE temperature, तो it is behaving as a ferromagnet। अगर इसका टेम्परेचर QE टेम्परेचर से बिलो है तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर है। द मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर पार्शियली अलाइन। जो मैग्नेटिक मूवमेंट होंगे, डाइपोल होंगे, वो पार्शियली अलाइन होते हैं विद इन अ मैग्नेटिक डोमेन। अब मैग्नेटिक डोमेन क्या होता है, कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे आपके डाइपोल्स जो होते हैं सेम डायरेक्शन में, नंबर ऑफ डाइपोल्स सेम डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं, उनको हम डोमेन कह देते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम अगर मैं लेता हूँ किसी सबस्टेंस का, तो उसमें वेरियस डोमेन होते हैं, और अगर आपके नंबर ऑफ डाइपोल एक ही डायरेक्शन में एक साथ ग्रुप करके डायरेक्ट करते हैं तो हम उसको डोमेन कह देते हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी की पिक्चर्स में क्लियर हो जाएगा। As the temperature is increases below from the below of the TC, टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर के नीचे से थर्मल एगिटेशन जो होगा दैट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग देयर अलाइनमेंट। थर्मल हीटिंग है, जो एगिटेशन है, उसके कारण उनका जो अलाइनमेंट है वो डिस्ट्रॉय होगा until the net magnetization becomes zero for the temperature above than TC। अब जैसे ही हम क्यूबी टेम्परेचर को क्रॉस करेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो कंडीशन दिए हैं, टेम्परेचर इज लेस देन क्यूबी टेम्परेचर, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, पार्शियली अलाइन है। टेम्परेचर को जैसे से बढ़ाओगे, क्यूबी टेम्परेचर के पास तक पहुंचोगे, तब तक इसने क्या करना है, थर्मल एगिटेशन के थ्रू जितना भी आपका मैग्नेटाइजेशन था उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। पहले इसका जो मैग्नेटाइजेशन था वो पार्शियल था, बट जैसे से टेम्परेचर बढ़ा इट गोज टू बी जीरो। एंड फॉर द टेम्परेचर अबव देन क्यूबी टेम्परेचर द मटेरियल इज प्योरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बिकॉज कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगा उसको अचीव कर लेगा,
एंड उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वो अलाइन हो जाएगा। द इफेक्ट इज यूज्ड फॉर द इफेक्ट इज यूज्ड इन मैग्नेटिक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। जो आपके इक्विपमेंट आते हैं, डिवाइसेस आते हैं जो मैग्नेटो ऑप्टिकल होते हैं, ये स्टोरेज मीडिया के लिए यूज किए जाते हैं फॉर इरेजिंग एंड राइटिंग इन न्यू डाटा। इसका मेन काम क्या होता है, डाटा को इरेज करना और रीराइट करना। जैसे आप देखते हैं सीडी या डीवीडी आता है, वो राइटेबल होता है या रीराइटेबल होता है, तो नॉर्मली उसके अंदर हम जो यूज करते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जो below a certain temperature behaving as like a ferromagnetic and after that temperature वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शुरू स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में जाने के बाद उसके सारे डाइपोल क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं एंड वो आपका रीराइटेबल इरेज करना है तो टेम्परेचर को आप क्योंकि टेम्परेचर तक पहुंचा दो, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। ये भी एक कंपोनेंट यहाँ कंसिडरेशन आपको यहाँ पे दी गई है। अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड डोमेन। अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन, मतलब अगर डाइपोल मोमेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट हो गई है इन ए पर्टिकुलर स्पेस इन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, पूरे सब्सटेंस के वॉल्यूम के अंदर कुछ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी वो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाती हैं एंड दैट इज कॉल्ड डोमेन। इसकी पिक्चर आपको एनसीईआरटी में क्लियरली दी गई है, यू कैन कॉपी फ्रॉम देयर for the better understanding. Now I am going to stop it here. So today's class is over now.